بوئنگ کمپنی کی بربادی کا عمل 5 جنوری 2024 سے شروع ہوا جب السکن الفار لائن کے ایک الفار گرافٹ بوئنگ 737 میکس کا ایمرجنسی ایکسٹ ڈور ہوا میں ہی نکل گیا۔ اس دوران جہاز میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، آکسیجن ماسک نکل آئے، ہر طرف چیخ و پکار، انجن اور تیز ہوا کی آوازیں پورے کیبن میں گونج اٹھی۔ یہ ہے پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہونے والی کنورزیشن۔ اگر آپ ایک مرمات کی طرف کیا تو ایک ایمارنسی کی طرف۔ السکن الفار لائن کی فلائٹ 1282 میں اس وقت 171 پیسنجرز اور 6 گرو ممبر موجود تھے۔ خوش قسمتی سے جہاز کو تو واپس پورٹ لینڈ انٹرنیشنل الفار پورٹ پہ لینڈ کروا دیا گیا اور آسمان سے گرنے والے دروازے نے بھی زمین پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ حادثہ نیوز میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گیا۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ بوئنگ جیسی اتنی بڑی اور پیٹ کمپنی کے جہاز کا دروازہ ایسے کسے نکل سکتا ہے، اور خاص طور پر جب جہاز صرف 2 مہینے پر آنا ہو۔ انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ایمرجنسی ایکسٹ ڈور کو ایک تو ری انسٹال کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جہاز کی ڈلیوری سے پہلے اس میں 3 نٹ بولٹس نہیں لگائے گئے تھے۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ نے پوری الفار لائن ان 10 میں خود کو ایک انجینئرنگ فرم سے بزنس ماڈل میں کیسے اور کیوں بدلا، اور 2018-19 میں بوئنگ 737 میکس میں ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر گلچ 2 بھیانک الفار کرشز کی وجہ کیسے بنا۔ زم2 کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ الفار ٹریول کرنے والے زیادہ تر ٹریولرز اس بنا پر جہاز میں سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے الفار لائنز پر اور جہاز بنانے والی کمپنی پر السکن الفار لائن کے ساتھ ہونے والے اس حادثے نے بوئنگ کمپنی کا یہ بھروسہ، یہ ٹرست توڑ دیا ہے۔ صرف یہی ایک حادثہ نہیں تھا جس نے بوئنگ کمپنی کا ٹرست توڑا۔ 29 اکتوبر 2018 کو انڈونیشیا کی لائن الفار فلائٹ 610 سکرنوہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوئی۔ یہ بوئنگ کمپنی کا 737 میکس ایئر کرافٹ تھا۔ ابھی ٹیک آف کیے ان کو 13 ہی منٹ گزرے تھے کہ پلین کچھ عجیب سا بھی۔ پہلے اس کی نوز ڈاؤن ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے جہاز اوپر کی طرف جاتا ہے، اور پھر فائنلی نوز دوبارہ سے ڈاؤن ہوتی ہے اور جہاز جاواسی میں جا کر کریش ہو جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 189 لوگ تھے جن میں سے ایک بھی نہیں بچ پایا۔ اس حادثے کو ابھی 5 مہینے ہی گزرے تھے کہ اسی قسم کا ایک اور حادثہ دنیا نے دیکھا۔ ایتھیوپین الفار لائنز فلائٹ 302 10 مارچ 2019 کو بول انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایتھیوپیا سے کینیا کی طرف اڑان بڑھتی ہے۔ صرف 6 منٹوں کے بعد پلین ڈالا ہوا گیا اور قریبی گاؤں میں جا کر گیا۔ اس حادثے میں 157 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یہ الفار کرافٹ بھی بوئنگ کمپنی کا 737 میکس تھا، سیم جہاز کا ماڈل، اور 5 مہینوں میں دوسرا کریش۔ ٹوٹل 3.44 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ دونوں الفار کرافٹ کا کریش ہونے سے پہلے بہیویئر کافی عجیب اور ملتا جلتا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بوئنگ 737 میکس میں ایک ایسا فلوٹ ڈھونڈ نکالا جس کی وجہ سے یہ دونوں پلین کریش ہوئے تھے۔ یہ فلو کیا تھا، یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بوئنگ اس لاپرواہی تک پہنچ کیسے گئی۔ بوئنگ کمپنی پہلے صرف ایک انجینئرنگ کمپنی ہوا کرتی تھی۔ 1916 میں ولیم ای بوئنگ نے کمپنی کی بنیاد ڈالی جو پہلے صرف راکٹس، سیٹلائٹس اور ایروپلینز کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کرتے تھے۔ 1969 میں بوئنگ نے اپنا مشورے زمانہ بوئنگ 747 لانچ کیا جس کو کوئین آف دی اسکاز کا لقب دیا گیا تھا۔ جہاز کا یہ ماڈل ہوئی سفر میں ایک نیا انقلاب لے کر آیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ نہیں بوئنگ ہے تو میں نہیں جائیں گا، یعنی بوئنگ پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس جہاز کے علاوہ لوگ کسی اور میں سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ بوئنگ کا یہ ٹرسٹ لیول اس حد تک کر چکا ہے؟ یہ 2024 میں بوئنگ جہاز کے ساتھ ہوئے حادثات کی ایک لسٹ ہے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف 2024 جنوری میں ہی بوئنگ کے 5 جہاز چھوٹے بڑے حادثات کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ انڈسٹری ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بوئنگ کی بربادی کا عمل 1997 میں شروع ہوا تھا۔ 1990 میں جب امریکہ اور سوویت کی کولڈ وار ختم ہوئی تو اس وقت بوئنگ کی انکم پر بھی کافی فرق پڑا، کیونکہ بوئنگ ایک انجینئرنگ فرم تھی جو امریکن ملٹری کے ساتھ کانٹریکٹ پہ کام کرتی تھی، اور ظاہر ہے کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یہ کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا گیا۔
इस डर से कि उनकी इनकम पर फर्क न पड़े उन्होंने अपने कंपेटिटर अलिफार क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस को $14 बिलियन यानी आज के करीब 1150 अरब रुपयों में खरीद कर खुद को अलिफार लाइन इंडस्ट्री का अकेला बेताज बादशाह डिक्लेयर कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मर्डर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। जिनका काम था परफेक्ट जहाज बनाना, वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लिव्स को देखने में लग गए। बोइंग अपने कंपेटिटर मैकडॉनल्ड डगलस को खरीद कर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर अकेला राज तो करने लगा, लेकिन यह आज़ादी ज्यादा वक्त न चल सकी। 2000 में बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोपियन अलिफार लाइन मैन्युफैक्चरर अलिफार बस मैदान में आ गया। बोइंग की सील्स को एक जोरदार झटका लगा जब अलिफार बस ने अपना A320 न्यू लॉन्च किया। ये मॉडल अलिफार बस ने खास मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए डिज़ाइन किया था। इसका इंजन खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था, यानी ये कम फ्यूल में ज़्यादा दस्तन स्कोर कर लेता था। इसी साल के दिसंबर में अलिफार बस A320 न्यू के 667 डिसेंट सिर्फ एक ही हफ्ते में बिक गए। अलिफार बस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले ज़मीन ही खिसका दी। वो बोइंग जो पिछली कई दहाइयों से इस इंडस्ट्री पर अकेला राज कर रहा था, इसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। अगले साल यानी 2011 में बोइंग ने एक नया जहाज 737 मैक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। ये अलिफार बस A320 न्यू की टक्कर में लॉन्च किया गया था। बोइंग के इस कदम ने अलिफार लाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन यह वही जहाज का मॉडल था जिसका 2018 और 2019 में भारी क्रैश हुआ। असल में हड़बड़ाहट में आकर अलिफार बस से मार्केट शेयर वापस लेने के चक्कर में बोइंग यहां एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इस नए जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाए, पर मसला ये था कि ये इंजन काफ़ी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए जहाज की पूरी डिज़ाइनिंग दोबारा से होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने ये नया और बड़ा इंजन सालों पुराने अलिफार क्राफ्ट में ही लगा दिया, जिससे इंजन का वजन प्लेन के अगले पोर्शन में ज़्यादा हो गया। यानी इस नए इंजन ने अलिफार क्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स बदल दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से फ्लाइट के दौरान कुछ कंडीशंस में बोइंग 737 मैक्स की नोज ऊपर हो जाती थी। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, मनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम या फिर MCS। इन लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये सॉफ्टवेयर एक सेंसर की मदद से मालूम करता कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक क्या है, यानी इसकी नोज ऊपर है या नीचे। इस सेंसर को एंगल ऑफ अटैक सेंसर कहते हैं। अगर नोज ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होती है तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एलिवेटर्स को डाउन करके जहाज की नोज को खुद ब खुद बना पायलट के उनपिट के नीचे कर देता है। ये एक नया सिस्टम था जो इससे पहले होता यूं है कि जब भी कमर्शियल एरोप्लेन्स में कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसके लिए पहले अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग होती है और पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में वक्त और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी तो उन्होंने MCS के बारे में ना ही एयरलाइंस को कुछ बताया, ना ही पायलट्स को और ना ही फेडरल एविएशन अलिफ। उन्होंने सोचा कि जब सॉफ्टवेयर खुद ही प्लेन को सीधा कर सकता है तो फिर पार्ट्स अलिफार लाइंस को बताने की क्या ज़रूरत है। ये वो पॉइंट था जहां चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। जैसा कि अपने पहले जाना कि MCS सिर्फ एक सेंसर पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ अटैक सेंसर। बोइंग को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर ये सेंसर ही खराब हो गया तो फिर क्या होगा। अगर ये सेंसर खराब हो गया या फिर किसी वजह से इसने MCS को गलत रीडिंग दे दी तो बना पायलट उनपिट के सीधा चलता हुआ जहाज भी अचानक नोज डाउन करेगा, जिसको फिर कंट्रोल करना पायलट के बस की बात भी नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ लाइन अलिफार लाइन फ्लाइट 610 और इथियोपियन अलिफार लाइन फ्लाइट 302 के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की इस लापरवाही का इल्म हुआ तो वो दोनों प्लेन क्रैशेस का कसूरवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और फिर FAA को भी ठहराने लगे, क्योंकि FAA का ही काम था इस चीज़ की जांच करना। जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 387 अलिफार क्राफ्ट सर्विस में थे और उन सब को एक साथ ग्राउंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके नतीजे में एक तरफ बोइंग की स्टॉक प्राइस गिर गई और उनको $20 अरब का घाटा हुआ, वहीं बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने FAA को धोखे में रखने पर $2.5 अरब का जुर्माना अलग से लगाया। बोइंग को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ उनके अपने एम्प्लॉइज का ही रहा है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की खबरें वहां काम करने वाले टेक्नीशियंस ने ही लीक
सोशल मीडिया पर बोइंग फैक्ट्री की एक वीडियो लीक हुई जिसमें टेक्नीशियन से पूछा गया कि क्या वो बोइंग के प्लेन्स पर सफर करना चाहेंगे। मौके पर मौजूद जितने अलिफ एम्प्लॉयज थे उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वीडियो के रूल्स होने के बाद अलिफार लाइन इंडस्ट्री में खौफ की एक लहर दूर गई। फैक्ट्री टेक्नीशियंस ने पुराने जहाज के पार्ट्स नए जहाजों में लगाने का भी हैरान कुन इंकशाफ किया। वो जहाज जो तमाम एयरलाइंस ने अपने अपने बोइंग 737 मैक्स की इंस्पेक्शन करवाई, जिस पर मालूम पड़ा कि कहीं पर रिविट सही से नहीं लगाई गई तो कहीं पर पुराने पुर्जे वो भी लिव्स पड़े थे। 9 नवंबर 2020 में तमाम ग्राउंड हुए 737 मैक्स को इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और कुछ चेंजेस के बाद दोबारा से सर्विस कर दिया गया, पर बोइंग की रिपोर्टेशन पर लगा दाग अभी डोला ही नहीं था कि एक और मसला खड़ा हो गया। बोइंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय विसिल ब्लोअर यानी मुखबिर बन गया और उसने टर्मिनेट के बाद बोइंग में होने वाली बेज़ाबतगियों की कहानी मीडिया पर लीक कर दी। बोइंग में काम करने वाले जॉन बार्नेट 2010 से 2017 तक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2016 में अपनी रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि बोइंग के एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब प्लान में इंस्टॉल किया। इस तरह के और भी कई एक्शंस बार्नेट ने नोटिस किए जिसमें पुराने इस्तेमाल शुदा पार्ट्स नए प्लान में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स भी की, लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में इसको डिग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट पर लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बार्नेट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग में होने वाली सारी मश मैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा, लेकिन बार्नेट ये केस हार गए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलिस्किन अलिफार लाइन के बोइंग 737 मैक्स का दरवाज़ा हुआ में ही निकल गया तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और लॉ सूट कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट में इस केस की तीसरी पेशी थी, लेकिन इस दिन जॉन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके, बल्कि वो अपनी गाड़ी में मरते पाए गए। जी हां, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। पुलिस ने बताया कि जॉन ने अपने आप को खुद गोली मारी है, लेकिन क्योंकि उनकी मौत से एक बहुत बड़ा नाम जड़ा है, इसीलिए पुलिस उनकी मौत पर डिटेल डाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्योंकि जॉन बार्नेट ही नहीं रहे तो बोइंग के खिलाफ केस का क्या होगा उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां बोइंग की मार्केट वैल्यू पहले ही डाउन ट्रेंड में थी, अलिस्किन अलिफार लाइन के साथ हुए हादसे और जॉन बार्नेट की मौत के बाद उनके स्टॉक्स को दोबारा से एक झटका लगा। पीसी निजरस और अलिफार लाइन्स के बीच जो बोइंग का भरोसा टूटा है, इसको वापस से बहाल करने में शायद बोइंग को अगले कई साल लग जाए। उम्मीद है कि आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।